pneumonia. Okay, drugs for pneumonia. So you know कि pneumonia जो है that can be viral, bacterial, fungal or aspiration pneumonia. ठीक है, pneumonia can be due to viruses, it can be due to bacteria, it can be due to fungus, and also there is aspiration pneumonia. Okay, so pneumonia is a respiratory infection in one or both the lungs caused by bacteria, viruses or fungi. It is characterized by inflammation of the alveolar space and or the interstitial tissue of the lungs. Pneumonia that is result from the aspiration of stomach contents is known as aspiration pneumonia. Both viral and bacterial pneumonia are contagious. On the other hand, the fungal pneumonia does not spread from person to person. Okay, pharmacological management of pneumonia. So first, prevention के लिए vaccinations are there, prophylaxis, vaccination. So currently there are 3 vaccines available that can significantly reduce childhood mortality from and related to pneumonia. These are, first one, pneumococcal conjugate vaccine, that is PCV. Then HIV containing pentavalent vaccine. HIV containing pentavalent vaccine. HIV is Haemophilus influenzae type B. Okay, and measles vaccine. Measles vaccines. So these 3 types of vaccines are available in for the children. Then the pneumonia vaccines available for adults are, for adults, Pneumovax, that is PPS V23, and Prevnar, that is PCV 13. Okay, so these are the vaccines for pneumonia. Then next, drug therapy. Okay, drug therapy for the pneumonia. So drug therapy में most cases of viral pneumonia are self-limiting. Okay, most cases बोला है, most cases of viral pneumonia are self-limiting, although therapy of influenza pneumonia with specific antiviral agents such as amantadine or rimantadine may speed up recovery. Okay, amantadine or rimantadine may speed up recovery. Then treatment of bacterial pneumonia. Bacterial pneumonia initially involves empiric antibiotic therapy. Empiric मतलब सिम्टम्स बेस्ड. कल हम लोगों ने डिस्कस किया है जो कीमोथेरेपी है या एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी है, तो उसमें हमने कल एम्पेरिक थेरेपी, देन डेफिनेटिव थेरेपी, ये थेरेपीज हम लोगों ने डिस्कस की है. ओके, सो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल न्यूमोनिया इनिशियली इन्वॉल्व्स empiric antibiotic therapy based on severity and patient risk factors. Also, supportive care should be provided to treat pneumonia. Supportive therapy may include sufficient rest and physical therapy, hydration, then treat hypoxemia, incentive, spirometer, antipyretics, analgesics as needed, for example paracetamol, then expectorants and mucolytics and antitussives like codeine. Okay, then drugs to treat pneumonia. Drugs to treat pneumonia. So depending on the causative agent, like बैक्टीरिया अगर है तो एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स यूज करना होगा, अगर वायरल है तो एंटीवायरल्स यूज करने होंगे, और यदि फंगस है तो एंटीफंगल्स यूज करने होंगे. ओके, सो लेट्स सी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट न्यूमोनिया. तो इसमें ये जो कॉलम्स है, यू कैन सी हियर ड्रग्स, नेम ऑफ द ड्रग, देन डोज. तो यहाँ पे जो डोजेस है दे आर फॉर द एडल्ट डोज. ओके, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन साइड इफेक्ट्स एंड ड्रग इंटरेक्शंस. इतनी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है. ओके, और इससे और भी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही फर्स्ट लेक्चर में आपको कुछ मैंने लिटरेचर के बारे में बताया था, या कुछ वेबसाइट्स मैंने आपको बताई थी. जैसे कि मैंने आपको बताया था pdr.net के बारे में बताया था, या mims.com के बारे में बताया था, या फिर मैंने आपके साथ में ये भी शेयर किया है अपना जो
प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल भी आपके साथ में शेयर किया है, ठीक है, या कुछ गाइडलाइंस भी मैंने शेयर की है आप लोगों के साथ में। तो उसके अंदर में आपको डिटेल और भी फर्दर डिटेल जो है इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की गाइडलाइंस, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के प्रोटोकॉल है, उसमें भी इसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया के बारे में, ठीक है। सो यहाँ पे ड्रग्स में जैसे फर्स्ट है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन इज टाइप ऑफ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, इट इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। इसका डोज है 500 मिलीग्राम पर डे। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो इट स्टॉप्स ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय इंटरफेयरिंग विद प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, इंटरफियरिंग विद प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। तो कल जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी में मैकेनिज्म्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देखा, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि 30S या 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे एक्ट करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ओके। तो जो एजिथ्रोमाइसिन है, ये जो ड्रग है, ये बैक्टीरिया में 50S राइबोसोमल सब यूनिट को स्टॉप करता है, ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है, 50S राइबोसोमल सब यूनिट। और राइबोसोम का वर्क अगर स्टॉप होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो एजिथ्रोमाइसिन स्टॉप द प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, इट इंटरफियर्स विथ प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, ओके। देन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स आर फीलिंग सिक, लूजिंग एपेटाइट, डिजीनेस, चेंज इन टेस्ट। दिस कैन बी कॉमन साइड इफेक्ट्स of azithromycin. Then इसका interact with antacids, phenytoin, digoxin. अगर एंटासिड्स के साथ में हम देते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, यह ड्रग जो एजिथ्रोमाइसिन इनइफेक्टिव हो सकता है। देन नेक्स्ट ड्रग इज एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन यह बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ पेनिसिलिन, यह पेनिसिलिन का डेरिवेटिव है, इट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, इट इज द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। इसका डोज है 500 मिलीग्राम पर डे एंड इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, इट इनहिबिट्स बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। सो कल हमने देखा है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं एंड देन दे किल द बैक्टीरिया। तो एमोक्सिसिलिन ये बीटा लैक्टम कैटेगरी का ड्रग है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और बैक्टीरिया को किल करता है। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है, दोज आर स्किन रैशेस, नोशिया, वोमिटिंग, ब्लैक टंग, ओके, ब्लैक टंग। एंड ड्रग इंटरेक्ट्स विद अर्गोटामिन एंड पिमोजाइड, अर्गोटामिन एंड पिमोजाइड। देन नेक्स्ट ड्रग इज लिवोफ्लॉक्सासिन, नेक्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट टू ट्रीट निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया, और एंटीबैक्टीरियल ड्रग टू ट्रीट निमोनिया इज लिवोफ्लॉक्सासिन। लिवोफ्लॉक्सासिन ये जो है ये फ्लोरोक्विनोलोन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है, फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी का है। फ्लोरोक्विनोलोन जिसमें कि ओफ्लॉक्सासिन भी आता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी आता है, नॉरफ्लॉक्सासिन भी आता है फ्लोरोक्विनोलोन्स में। और जो फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग्स होते हैं ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं और बैक्टीरियल का जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन या ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको स्टॉप करते हैं। सो लिवोफ्लॉक्सासिन डोज 750 मिलीग्राम पर डे। अब मैंने ये जो डोजेस यहाँ पे लिए हैं, जो भी डोजेस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे जो बता रहा हूँ, इसका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज जो मिम्स है mims.com, तो mims.com फर्स्ट एंड सेकंड जो मैंने लिया है वो प्रोटोकॉल जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वहां से मैंने डोजेस लिए हैं, ठीक है। आप अगर डिफरेंट बुक्स रेफर करते हो, जैसा आपने केडी त्रिपाठी रेफर किया फार्मेकोलॉजी का, या आपने गुडमन गिलमन रेफर किया, या फिर आपने और दूसरी वेबसाइट्स रेफर की, या मैन्युफैक्चरर्स के भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपने रेफर की, तो हो सकता है कि डोजेस में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस नजर आए, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेस में। तो मैंने जो सोर्सेस यहाँ पे लिए हैं वो mims.com लिया है
और प्रोटोकॉल लिया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है, वहां से मैंने लिया। आप केडी त्रिपाठी रेफर कर सकते हो, आप और भी कोई दूसरे भी सोर्सेज आप रेफर कर सकते हो जो ऑथेंटिक सोर्सेज है। ऑथेंटिक सोर्सेज की लिस्ट मैंने आपको पहले लेक्चर में दी है। ओके, सो लियोफ्लॉक्सासिन 750 मिलीग्राम पर डे इसका डोज। देन इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल टोपोआइसोमरेज आईवी एंड डीएनए गायरेज। अभी जो डीएनए गायरेज है ये भी सेम टोपोआइसोमरेज ही है। देन इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? कॉमन साइड इफेक्ट इंसोम्निया, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, एब्डोमिनल पेन। ओके, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स है लियोफ्लॉक्सासिन के। देन इट इंटरैक्ट विथ एस्पिरिन, ओके, मेटफॉर्मिन एंड प्रेडनिसोन। तो लियोफ्लॉक्सासिन इंटरैक्ट विथ एस्पिरिन, एनएसएआईडी है, मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, प्रेडनिसोन स्टेरॉइड है, स्टेरॉइडल ड्रग। तो इनके साथ में लियोफ्लॉक्सासिन का इंटरैक्शन है। देन टेलिथ्रोमाइसिन, डोज 800 मिलीग्राम पर डे। इट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय इंटरफेरिंग विद देयर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये जो टेलिथ्रोमाइसिन है ये 30s राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है उसको इनहिबिट करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करेगा। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स नोशिया, वोमिटिंग, एंजाइटी एंड हेडेक। इट इंटरैक्ट विथ एंटी सीजर ड्रग, अर्गोट ड्रग, रिफाम्पिन एंड मेटोप्रोलोल। ओके, तो इसके साथ में टेलिथ्रोमाइसिन के इंटरैक्शंस। देन सेफुरोक्साइम, ये सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। इट इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। सेफुरोक्साइम इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ठीक है, और ये सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। तो सेफुरोक्साइम इसका डोज है 500 मिलीग्राम पर डे एंड इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। बीटा लैक्टम है, सभी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। ओके, इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स नोशिया, वोमिटिंग, स्ट्रेंज टेस्ट इन माउथ, स्टमक पेन। ओके, देन इट इंटरैक्ट विथ ओमेप्राजोल, फुरोसेमाइड, फेमोटिडिन। देखिए ओमेप्राजोल, ओके, ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, राबिप्राजोल। तो ओमेप्राजोल के साथ में इसका इंटरैक्शन है। ओमेप्राजोल एंटासिड, फुरोसेमाइड दैट इज लैसिक्स, फुरोसेमाइड इज लैसिक्स, डायूरेटिक है, एंड फेमोटिडिन ये भी एंटासिड है, फेमोटिडिन इज एन एंटासिड। तो इनके साथ में सेफुरोक्साइम का इंटरैक्शन हो सकता है। देन पेनिसिलिन जी, दैट इज बेंजाइल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जी इज बेंजाइल पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। डोज 250 to 500 मिलीग्राम एवरी 6 आवर्स। देन इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। बीटा लैक्टम है तो सेल वॉल बायोसिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स सीवियर स्टमक पेन, फीवर, चिल्स, swollen glands, then muscle pain, feeling short breath. Okay, then इसका interact with aspirin, phenylbutazone, sulfonamides, thiazide diuretics। ये ड्रग्स के साथ में पेनिसिलिन जी का इंटरेक्शन होता है। ओके, सो दीज आर द कॉमनली यूज्ड ड्रग्स टू ट्रीट बैक्टीरियल न्यूमोनिया, ठीक है। सो दीज आर एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल न्यूमोनिया। देन नेक्स्ट हम जाते हैं एंटीवायरल्स पे। एंटीवायरल्स वायरल न्यूमोनिया को ट्रीट करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ड्रग इज ओसेल्टामिविर। सो डोज 75 मिलीग्राम पर डे। देन इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग न्यूरामिनिडेज with subsequent inhibition of viral release. Now neuraminidase, this is an enzyme. Neuraminidase ये एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करता है, तो जब वायरस का रेप्लिकेशन होता है सेल के अंदर में और इन्फ्लुएंजा वायरस का, और वो इन्फ्लुएंजा वायरस जब सेल से बाहर निकलता है, सेल में से बाहर निकलता है, तब वो सेल मेम्ब्रेन को अटैच रहता है। वायरस जो होता है, विरियन जो होता है, वायरस पार्टिकल जो होता है, सिंगल वायरस विरियन, यह सेल मेम्ब्रेन को अटैच रहता है। तब उसे सेल मेम्ब्रेन से डिटैच करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट करने के लिए यह न्यूरामिनिडेज एंजाइम एक्ट करता है। न्यूरामिनिडेज एंजाइम
वायरस को सेल मेम्ब्रेन से डिटैच करता है, ब्रेक करता है, सेपरेट करता है, और फिर वो वायरस दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करता है। मतलब न्यूरामिनेडेज एंजाइम ये सीजर का काम करता है, कैंची का काम करता है। नाउ ये जो ओसेल्टामिविर ड्रग है, ये ओसेल्टामिविर ड्रग या फिर ये झनामेविर, ये दोनों भी ड्रग क्या करते हैं, तो ये जो न्यूरामिनेडेज एंजाइम है, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। और यदि न्यूरामिनेडेज एंजाइम इनहिबिट होता है तो जो वायरस है, विरियन है, वो सेल मेम्ब्रेन से डिटैच नहीं हो पाएगा, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के नहीं जा सकता है, वो पर्टिकुलर उसी सेल में, उसी सेल मेम्ब्रेन पे अटैच होके रहेगा, वो सेल को छोड़ के नहीं जा सकता है। और उसके बाद में फिर उस वायरस को वो एक ही जगह पे बंधा हुआ रहेगा, वो एक ही जगह पे बंधा हुआ रहेगा, तो हमारे बाद में जो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगी। इम्यूनिटी विल डिस्ट्रॉय दैट वायरस। सो इस तरह से ये ओसेल्टामिविर एंड झनामिविर एक्ट करते हैं। तो ओसेल्टामिविर का डोज है 75 मिलीग्राम पर डे। इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग न्यूरामिनेडेज विद सब्सिक्वेंट इनहिबिशन ऑफ वायरल रिलीज। वायरल रिलीज नहीं हो सकता है, वायरस जो है वो सेल मेम्ब्रेन को अटैच होकर रह जाता है। देन इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स डायरिया, नौशिया, वोमिटिंग, हेडेक, नोज ब्लीड, आई रेडनेस। एंड इंटरेक्शन, इट इंटरेक्ट्स विथ वारफेरिन, इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन के साथ में इसका इंटरेक्शन है। देन प्रोवेनिसिड। ओके, नेक्स्ट झनामेविर। अब झनामेविर जो ड्रग है, ये इनहेलेशन के थ्रू ही दिया जाता है, थ्रू इनहेलेशन ओनली। ओके, सो इसका डोज है 5 मिलीग्राम इनहेलेशन पाउडर। सो इट आल्सो एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग न्यूरामिनेडेज विद सब्सिक्वेंट इनहिबिशन ऑफ वायरल रिलीज एंड स्प्रेड। एंड झनामेविर के कॉमन साइड इफेक्ट्स आर हेडेक, डिजीनेस, ईयर पेन, नौशिया, वोमिटिंग, कफ, etc. Interaction, it interacts with amoxicillin, amphetamine. Okay. Then next antiviral drug is peramivir. Okay, peramivir 300 milligram injection. It is a cyclopentane analog that competitively binds to the active sites of virus न्यूरामिनेडेज। तो ये भी वायरस न्यूरामिनेडेज को बाइंड होता है, उसको इनहिबिट कर देता है। ओके, तो इसके साइड इफेक्ट्स, कॉमन साइड इफेक्ट्स डायरिया, इंक्रीज्ड सीरम ग्लूकोज, इंसोम्निया, हाई ब्लड प्रेशर। ओके, इंसोम्निया। ओके, ये भी इसका एक मेन एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। देन इसके इंटरेक्शन, इंटरेक्ट विथ लाइव अटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। लाइव अटेन्यूएटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साथ में इंटरेक्ट करता है, इंट्रानेजल। देन अवॉइड यूज ऑफ वैक्सीन विद इन 2 weeks बिफोर और 48 hours आफ्टर एडमिशन ऑफ पेरामिविर अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड। ओके, these are the antiviral drugs to treat pneumonia. Then antifungal drugs, तो एंटीफंगल्स में इट्रैकोनाजोल। ओके, इट्रैकोनाजोल, तो डोज एडल्ट ओरल 200 मिलीग्राम 3 times daily for 3 days followed by 200 milligram 1 or 2 times daily for 6 to 12 months. Okay, for 6 to 12 months, काफी लॉन्गर ट्रीटमेंट है। ठीक है, 6 to 12 months का ट्रीटमेंट है। सो इट कॉजेस कैस्केड ऑफ मेम्ब्रेन एबनॉर्मलिटीज इन द फंगस। तो इट्रैकोनाजोल क्या करता है, तो इट्रैकोनाजोल जो फंगस का सेल मेम्ब्रेन होता है उसको डैमेज करता है, उसके परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि जो साइटोप्लाज्म होता है सेल मेम्ब्रेन का वो बाहर आ जाता है और सेल की डेथ हो जाती है, मतलब फंगस सेल की डेथ होती है। ओके, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट्रैकोनाजोल का। देन कॉमन साइड इफेक्ट्स ऑफ इट्रैकोनाजोल आर गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस इज सिग्निफिकेंट एट डोजेज अबाउट 400 मिलीग्राम पर डे। 400 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा का यदि डोज होता है तो गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस। देन डिजीनेस, प्रूराइटस, हेडेक एंड हाइपोकैलेमिया आर द अदर कॉमन साइड इफेक्ट्स। ओके, डिजीनेस, प्रूराइटस, headache and hypokalemia. Hypokalemia can be there. Then
interaction, oral absorption of itraconazole is reduced by antacids, H2 blockers and proton pump inhibitors. Okay, so antacids कोई भी हो, H2 blockers होते हैं, जैसे ranitidine है, ranitidine that is Zentac, एसिलॉक, Zentac, ये ranitidine है, ठीक है. तो एसिलॉक या जेंटाक अगर है, या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लाइक ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, राबिप्राजोल है. तो ये जो ड्रग्स है, मतलब कोई भी एंटासिड्स है, या फिर रैंटैक, जेंटैक है, या फिर ओमेप्राजोल है, तो ये ड्रग्स इट्राकोनाजोल का जो एब्जॉर्प्शन है या उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है, बायोअवेलेबिलिटी को कम करते हैं, ओरल एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं इट्राकोनाजोल के, जिससे कि इट्राकोनाजोल ये इनइफेक्टिव हो सकता है. आल्सो रिफाम्पिन, फिनोबार्बिटोन, देन फेनिटोइन एंड कार्बामेजिन इंड्यूस इट्राकोनाजोल मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूस इट्स एफिकेसी. तो ये जो ड्रग्स है, रिफाम्पिन दैट इज द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर है. फिनोबार्बिटोन एंटी कन्वर्जेंट है. देन फेनिटोइन ये भी एंटी कन्वर्जेंट है. कार्बामाजेपिन ये ट्रैंक्विलाइजर है, एंटीसाइकोटिक है. तो ये ड्रग्स इंड्यूस इट्राकोनाजोल मेटाबॉलिज्म, इट्राकोनाजोल के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, इंड्यूस करते हैं और उसकी एफिकेसी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है. सो दिस इज द इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन. ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है इट्राकोनाजोल की. देन नेक्स्ट ड्रग इज एम्फोटेरिसिन बी, नेक्स्ट एंटीफंगल ड्रग, एंटीफंगल एंटीबायोटिक. एम्फोटेरिसिन बी इज एंटीफंगल एंटीबायोटिक. सो इसका जो डोज है IV start with 250 microgram per kg per day and maximum is 1.5 milligram per kg per day. Then ये भी क्या करता है, so it forms micropores in cell membrane. ये भी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, सेल मेम्ब्रेन में पोर्स बना देता है, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से सेल डिस्ट्रॉय होगा, सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है. देन अब इसके जो एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स है, तो इसमें एक्यूट रिएक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूट रिएक्शंस लाइक एसोसिएटेड विथ इन्फ्यूजन एंड कंसिस्ट ऑफ चिल्स, फीवर, एक्स एंड पेन ऑल ओवर. ओके, एक्स एंड पेन्स ऑल ओवर, पूरी बॉडी में पेन होगा. देन नोशिया, वोमिटिंग एंड डिस्नोइया. ओके, ये एक्यूट रिएक्शंस है, दिस आर द एक्यूट रिएक्शंस ऑफ एम्फोटेरिसिन बी. देन लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एनीमिया, CNS टॉक्सिसिटी जिसमें कि हेडेक, नर्व पाल्सिस, ओके एक्सेट्रा ऑन इंट्राथेकल इंजेक्शन. सो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स है. देन इंटरेक्शन, सो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, ये हमने ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में स्टडी किया है. सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एडिटिव इफेक्ट एंड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं. सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दैट इज 2 + 2 = 5 और 6. ओके, सो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट विथ फ्लूसाइटोसिन. फ्लूसाइटोसिन ये भी एंटी फंगल ड्रग है. फ्लूसाइटोसिन इज आल्सो एन एंटी फंगल ड्रग. सो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट विथ फ्लूसाइटोसिन इन द केस ऑफ फंजाई sensitive to both, then enhance kidney damage with aminoglycosides, vancomycin, cyclosporin and other nephrotoxic drugs. Okay, so तो एम्फोटेरिसिन बी है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स, मतलब जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या एंटीबायोटिक्स के साथ में, या वैंकोमाइसिन के साथ में, या साइक्लोस्पोरिन के साथ में किडनी डैमेज इंक्रीज करेगा. ओके, then next is caspofungin. Caspofungin antifungal drug. So caspofungin intravenous dose for adult 70 milligram on first day, that is loading dose, followed by 50 milligram, 70 milligram in patient above 80 kg once daily. Thereafter doses are given by slow infusion over approximately 1 hour. Okay, then इसका mechanism, it inhibits the synthesis of the fungal cell wall. तो ये fungal cell wall के synthesis को inhibit करता है. So thus weakening of the cell wall leads to osmotic susceptibility of fungal cell which then succumbs. तो cell wall weak हो जाती है
और डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके वजह से फंगस की डेथ हो जाती है। ओके, देन इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स, हेडेक, फीवर, चिल्स, आर्थरालजिया, डायरिया, नौशिया, वोमिटिंग, फ्लशिंग, फ्लेबाइटिस, टैचिकार्डिया, रैश एक्सेट्रा। ओके, देन इसका इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, सो reduced plasma concentration with CYP enzyme inducers like rifampicin, then may increase hepatic enzyme with cyclosporin, may decrease blood concentration of tacrolimus. Tacrolimus is an anti-cancer drug.